अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। याद रहे कि ये अभी हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, क्लास 9th का। लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th, ठीक है बेटे। चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल। क्या? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स is again a real number। ठीक है, जैसा कि 5, 7 जो है वो दोनों रियल नंबर है। 5, 7 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। 5 + 7 is equal to 12 is also a real number। It is called closure property। It is called closure property। समझ आ गई है? Sum of any two real numbers, sum of any two real numbers is again a real number। अभी आपके सामने कोई भी दो रियल नंबर हमने लिए 5 और 7, उनको प्लस किया, अगेन आंसर क्या आया? रियल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और अगर माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली क्या कहलाएगी? सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? एक और एग्जांपल देख लें। 4/5, 3/4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। When we add both 4/5 plus 3/4, answer is 31/4, again belongs to real। Property number 2, commutative property। Commutative property, for any two real numbers a and b, for any two real numbers a and b, अगर हम इन्हें a + b लिखें या b + a लिखें, आंसर रिमेन सेम। इज कॉल्ड commutative property with respect to एडिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 + 7 is equal to 7 + 3, answer is 10। Number 2, radical 5 plus radical 6, radical 6 plus radical 5, answer will be the same। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम यहीं पर रोक देंगे। नंबर 3, associative
प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स A, B and C such that A plus B plus C is equal to A plus B plus C is called associative property with respect to addition। ये तमाम जो पढ़ रहे हैं हम, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जहन में रहना चाहिए आप लोगों के। नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी there exists a number 0 belongs to R। There exists a number 0 belongs to R such that A plus 0 is equal to A, or 0 plus A is also equal to A। A belongs to R। ठीक है बेटे, it means 0 is called additive identity। For example, 3 plus 0 is equal to 3 is equal to 0 plus 3। 7 upon 8 plus 0 is equal to 7 upon 8 is equal to 0 plus 7 upon 8 etc। Additive inverse, additive inverse for each A belongs to R, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A is equal to 0 is equal to minus A plus 0। So minus A and A are additive inverse of each other। I again repeat, for each A belongs to R, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A is equal to 0, or minus A plus A। So minus A and A are additive inverse of each other। For example, 6 plus minus 6 is equal to 0, minus 6 plus 6 is equal to 0। Here 6 and minus 6 are
एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटे। अब उसके बाद जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स with respect to multiplication। अब सारा काम वही होगा, बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जहाँ भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वहाँ पर। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। The product of any two real numbers, the product of any two real numbers A and B is again a real number that is A B R belongs to real number। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A B आएगा और जाहिर है कि ये भी क्या होगा, belongs to real, is called closure property with respect to multiplication। For example, 5, 7 belongs to real number। When we multiply 5 with 7, answer is 35, is also a real। 3 upon 5, 6 upon 7 belongs to real number। When we multiply 3 upon 5 to 6 upon 7, answer is 18 upon 35, also a real number। It is called a closure property। क्लियर है, समझ आ गया है। उसके बाद आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही है जो आपने पढ़ा है अभी, सिर्फ मल्टीप्लाई आ जाएगा। AB is equal to BA। Simple 3 multiply 5 is equal to 5 multiply 3। Answer will be the same। It is called commutative property। Number 3 associative। एसोसिएटिव में आपको पता है कि 3 वेरिएबल और 3 नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3 रियल वैल्यूज़ होती हैं। A B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C। ठीक है। 4 multiply by 5 multiply by 2 is equal to 2 multiply by 4 multiply by 5। Answer is 20 multiply by 2, 8 multiply by 5, 40 is equal to 40। It is associative property। उसके बाद है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 था, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो होगा 1।
सिंपल सा एक इसके लिए कंसेप्ट है, और वो ये कि एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये होती है कि ऐसा नंबर जो जब किसी अपने ही नंबर से माइनस हो तो आंसर ज़ीरो होना चाहिए, और ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर जब अपने ही नंबर से डिवाइड हो आंसर वन आना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि वन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी A multiplied by 1 is equal to A. 1 मल्टीप्लाई A, दोनों सूरतों में आंसर A आएगा। तो हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं 1 क्या है, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स A मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन A मल्टीप्लाई A, आंसर इज़ 1। सो 1 upon A and A are multiplicative inverse to each other. For example, 3 multiply 1 upon 3 is equal to 1 is equal to 1 upon 3 multiply 3। आपने देखा इस तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, जो अपना ही नंबर हो, जैसा कि 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये होती है जी A B प्लस C, दोनों मल्टीप्लाई कर दें A B प्लस A C। ठीक है, या फिर इसको आप लिख दें A प्लस B और C, और ये हो जाएगा आपके पास AC प्लस BC। ठीक हो गया। A B प्लस C, A पहले मल्टीप्लाई कर रहा है B प्लस C के साथ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया, याद रहेगा, गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आपकी बता दी प्रॉपर्टीज़ जो आप अभी यूज़ करेंगे आगे। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये थी जो आपके सामने हमने उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, आपको बता दिया है। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 1.2, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड टू द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सी एक्सरसाइज है, आपने देख के खुद ही बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 1/2 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जगह तब्दील हो गई है और एडिशन है, तो ये होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको खुद कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आके आप मालूम कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और जो है वो सीख सकें। ठीक है बेटे, एक और पार्ट में इसका आपको समझा देता हूँ। 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 4/10 इज़ इक्वल टू 15/10। देखें मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर 8/5 से भी, माइनस फिर 15/10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4/10 से। डेफिनेटली ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है और बाद में सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम हो हमें बताएं, हम आपको जो है उसका राइट आंसर भी बताएंगे और आपको समझा भी देंगे कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स है, सिंपल सा काम है, कोई बड़ा इशू नहीं है। रेडिकल 2/5 प्लस 3/रेडिकल 6 इज़ इक्वल टू ब्लैंक है 6 प्लस रेडिकल 2/रेडिकल 5। अब देख लें, जो ये रेडिकल 2 या हाँ ये इस पर रेडिकल नहीं है, रेडिकल 2/5 प्लस 3/रेडिकल 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो मौजूद नहीं है आप देख लें, उसको आप फिल कर दें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। 5 लेस देन 8, 5 8 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 5 लेस देन 10। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी करना क्या है, तो कोशिश करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और ख़ुद से आंसर निकालने की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में आके जो भी आपको क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप हमें बताएं, हम आपको गाइड करेंगे और कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो आप हमसे सॉल्व करवा लें, क्योंकि बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, इसमें इतना मसला आपको होना नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं खुद भी। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक्स द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। फाइव इज लेस देन 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ लेस देन। अब देखिए 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड पे 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 12 और 7 आल्सो मल्टीप्लाई बाई 12, बस इतनी सी बात, ये आपने काम करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ये आपको बताया जा चुका है। पहला है 3 का जो एडिटिव होगा वो क्या होगा? -3 एडिटिव। ठीक है बेटा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव में अगर 3 है तो मल्टीप्लाई करेगा 1/3 से, अगर 1/3 है तो वो मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। क्लियर है? ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले तमाम उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़
इससे रिलेटेड थी वो आज आपने सीख ली हैं, समझ ली हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेरीज़ है तो आप जो है वो आ सकते हैं हमारे चैनल पे और हमसे जो है मालूमात कर सकते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि अपने इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। सबका एहतराम कीजिए, सबकी इज़्ज़त कीजिए, खुश रहिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।